ਜਦ ਵੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਜਦ ਚਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ समथिंग अबाउट पोएट्री दैट रात का अंधेरा था कि पुत्रा पढ़ ले कि रोशन जहां को कर राजा लड़ कोई जीतता है कोई हारता है लाखों देखे हर बार वही चेहरा निकला तुझे रोका जो करवे से एक ਝੁਕਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਫਗਾਨ ਖਾਨ ਆਵੇ इसे सामान्य सफर जान ये जुगनू रख ले ਜਦ ਵੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਭੁੱਖ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ੀਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੋਂ ਔਰਤ ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਟਾ ਗੜਮਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਥਰੂ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰੱਬਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਾਟਾ ਗੜਮਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਥਰੂ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਡੰਗਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਘਾਹ ਪਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਛੱਲਾ ਮੋੜ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਛੱਲਾ ਆ ਪਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਸੰਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰ ਗੋਗਿਆ ਗਾਹ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਕਸਮਾਂ ਸਾਵਾਂ ਡਕਦਾ ਹੈ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਜੱਗ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਰੌਲਾ ਸਾਰਾ ਨੱਕਦਾ ਹੈ ਅਚਨਚੇਤ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ विदाउट एनी पर्सनल ऑफेंस और ऑफेंस टू एनी रिलीजन और समथिंग श्राद्ध निकले ने जिन्हों का फंडा मैनू समझ नहीं आता तो इसलिए मैं श्राद्धां ते कुछ लिखा सी मे बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मैं भी करा किसी का पर हाले फिलहाल मैनू श्राद्धां का फंडा समझ नहीं आता तो वो पिछे मैं कुछ लाइन्स लिखिया सी जिहड़ियां मैं सुनाना चाहांगी जदों मर जाना है तो फिर बस श्राद्धां जोगा हो के रह जाना ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਜੋਗਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਜੋਗਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਆਕੜ ਤੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਆਕੜ ਤੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਗਹਿਣੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਾਧ ਖਵਾਇਆ ਮਰੇ ਹੋਏ ਤੱਕ ਢੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਾਧ ਖਵਾਇਆ ਮਰੇ ਹੋਏ ਤੱਕ ਢੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦੱਸ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦੱਸ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਉਮਰ ਗਵਾਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੁੰਝਾਲੇ ਮੁੱਲ ਪਾਈਆਂ ਨਾ ਯਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦਾ ਇੰਜ ਖਵਾਈ ਰੋਟੀ ਜੇਕਰ ਪੁਰਖਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਢੋਂਗੀ ਸਾਧਾਂ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਢੋਂਗੀ ਸਾਧਾਂ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਜੋਗਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ त्योहारों का सीजन है तो एक दशहरे ते कुछ छोटा जिहा जो मैं रावण हूँ
जो मैं रावण हूं तो तुम राम हो क्या? जो मैं रावण हूं तो तुम राम हो क्या? मेरी तरह तुम भी बदनाम हो क्या? जो मैं रावण हूं तो तुम राम हो क्या? मेरी तरह क्या तुम भी बदनाम हो क्या? मरने के बाद भी देखो जलता हूं मैं हर साल, मरने के बाद भी देखो जलता हूं मैं हर साल, अपने अंजाम से मेरी तरह तुम भी अनजान हो क्या? थैंक यू सो मच। एक ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮੈਰਿਡ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇੱਕ ਮੈਰਿਡ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ गर्ल्स की लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है एकदम, कि एक नवी जगह ते जाना, उत्थे जाके एडजस्ट करना, तो एक विआही हुई लड़की की डायरी विचों अपनी माँ वास्ते डे टू डे कि उहदे नाल की हुंदा है। टाइटल है पता है माँ। छोटियां छोटियां गल्लां जो माँ बेटी दे दरम्यान हुंदियां ने ते मावां नूं पता ही हुंदियां ने। पता है माँ, पता है माँ, आज मैंने दूध फीका ही पी लिया। पता है माँ, आज मैंने दूध फीका ही पी लिया, तुमसे छना हुआ मांगती थी, फ्रिज से निकालकर सीधा ही पी लिया। पता है माँ, आज मैं दोपहर में सोई भी नहीं। पता है माँ, आज मैं दोपहर में सोई भी नहीं, चूल्हे पे हाथ जल गया मेरा पर मैं रोई भी नहीं। पता है माँ, अब मैं सुबह जल्दी उठना सीख गई हूँ। पता है माँ, अब मैं सुबह जल्दी उठना सीख गई हूँ, दिल की बातें दिल में छुपाकर अंदर अंदर घुटना सीख गई हूँ। पता है माँ, अब लगता है जैसे बिल्कुल तुम सी हो गई हूँ। पता है माँ, अब लगता है जैसे मैं बिल्कुल तुम सी हो गई हूँ, इतने भीड़ में इतनी शोर में खुद तो जैसे गुम सी होकर रह गई हूँ। पता है माँ, अब मैं घर में पड़ी एक पुरानी चीज़ जैसी हो गई हूँ। पता है माँ कि जदों थोड़ा टाइम होर बीत जाता है, हौली 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 तो हमें लगता है कि जिस तरह थोड़ी वैल्यू ख़त्म होनी शुरू हो गई है। पता है माँ, अब मैं घर में पड़ी एक पुरानी चीज़ हो गई हूँ, जगह जगह से उधड़ी सिली खद्दर की कमीज़ हो गई हूँ। पता है माँ, अब मेरे बच्चे भी मेरा फ़ोन काट देते हैं। पता है माँ, अब मेरे बच्चे भी मेरा फ़ोन काट देते हैं, कुछ ज़्यादा पूछ लूँ तो झट से डांट देते हैं। मुझे पता है माँ कि तू ये सब पहले से ही जानती है। मुझे पता है माँ कि तू ये सब पहले से ही जानती है, पर मेरे अंदर की वो छोटी सी बच्ची अब भी कहाँ मानती है, जो पता है माँ कहकर तुझे हर बात बताना चाहती है, और फिर से बस उसी बचपन में लौट जाना चाहती है, और फिर से बस उसी बचपन में लौट जाना चाहती है। 2 मिनट है ना मेरे को। एक छोटा जिहा कुछ लिखिया सी मैं, तू मेरा हो ना सका, तू मेरा हो ना सका। ए मैं जनरल लिखिया सी, मैं किसी वास्ते नहीं सी लिखिया। लेट मी क्लियर द एयर। तू मेरा हो ना सका, दिल को अब तेरी चाह नहीं। तू मेरा हो ना सका, दिल को अब तेरी चाह नहीं, अब तो दिल भी ये कहता है नहीं तो ना सही। तेरी बातें झूठी, तेरा प्यार धोखा, तेरी बातें झूठी, तेरा प्यार धोखा, मगर फिर भी ना जाने क्यों मेरी हर बात गलत, तेरी हर बात सही। चला गया तू मुझे तपती दोपहर में छोड़कर, चला गया तू मुझे तपती दोपहर में छोड़कर, फिर भी तुझे भूलना गुनाह है तो गुनाह सके। थैंक यू। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਜਦ ਚਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਜਦ ਚਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ, ਰਾਹੇ ਛੱਡਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੱਗ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਵਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸੱਜਣਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਵਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਵਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋੜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੰਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ, ਸੋਚਾਂ ਸੂਲੀ ਟੰਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ, ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾ, ਜੋ ਵੀ ਸੱਜਣ ਆਖੇ ਸਹਿ ਜਾ। ਲੋਕ ਸੁਨੇਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਸੁਨੇਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਜਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਖਲੋਤੇ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਖਲੋਤੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੋਰੇ ਕੀ ਨਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੋਰੇ ਕੀ ਨਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੱਜਣਾ ਇਸ਼ਕੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਦਿਲ ਥਾਂ ਥਾਂ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਖਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਅਖਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਆਨ ਤੇ ਅਣਖ ਗਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਨ ਤੇ ਅਣਖ ਗਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੱਗ ਦੇ ਪੇਚਾਂ ਵਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪੱਗ ਦੇ ਪੇਚਾਂ ਵਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਰਾਂ ਘਾਰਾ ਭਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲੱਜ ਰੱਖੀਏ, ਅੰਬਰਾਂ ਤੀਕਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅੰਬਰਾਂ ਤੀਕਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਆਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮੇ ਰੁੱਖ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ, ਦੇਣ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਛਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਤਿਲ ਠੋਡੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵਣ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਧੂ ਸ਼ਹਿਰ ਗ੍ਰਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। जब जंगें लड़ी जाती है, राजा लड़ते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है। रोजमर्रा की जिंदगी में जो विनर्स होते हैं उन्हें मनाया जाता है, जो लूजर्स होते हैं उन्हें सताया जाता है। ज़्यादातर इंसान ना विनर्स होते हैं ना लूजर्स होते हैं, ज़्यादातर इंसान होते हैं मामूली इंसान। तो आज जो मैंने लेख लिखा है मामूली इंसान पर लिखा है, होप सो आप सब रिलेट करेंगे, हम सब मामूली इंसान। मैं एक मामूली इंसान हूँ, रोज रोज की जिंदगी में जूझता उलझता, जाने के मुश्किलों से खुद को बचाता। छोटी छोटी बातों पे हंस देता हूँ, छोटी छोटी बातों में रो देता हूँ। चलते चलते दिल टूट जाता है, चलते चलते दिल जोड़ लेता हूँ। रुकते रुकते कुछ बोल देता हूँ, बोलते बोलते फिर मैं रुक जाता हूँ। मैं एक मामूली इंसान हूँ, सरकार की नौकरी की चाह रखता हूँ, फिर चाय की टपरी पे बैठ के उसी सरकार की बुराइयां करता हूँ। न्यूज की हेडलाइंस मुझे पूरी याद रहती है, मगर घर से निकलते निकलते चाबी भूल जाता हूँ। ट्रेन के पीछे बैठ के ऑडी चलाने के मैं सपने देखता हूँ। फिर ट्रेन बस चेंज करके इतनी ट्रैफिक से भाग दौड़ करके मैं ऑफिस पहुँचता हूँ और उसी ऑफिस के उसी डेस्क पे बैठ के काम करने का शौक मनाता हूँ। मैं एक मामूली इंसान हूँ, पूरी दुनिया जीतने की ख्वाहिश रखता हूँ। मैं एक मामूली इंसान हूँ, पूरी दुनिया जीतने की ख्वाहिश रखता हूँ, पर रात में आके आराम से अपने ही बेड पर मैं सोना चाहता हूँ। मैं अंबानी जैसा अमीर बनना चाहता हूँ, मैं मोदी जी जैसा फकीर बनना चाहता हूँ। किसी भी तरह से, किसी भी हिसाब से मैं बस खुद से बेहतर बनना चाहता हूँ। मैं एक मामूली इंसान हूँ, जिंदगी की इन्हीं राहों पे बनता बिखरता हूँ, गिरता संभलता हूँ, अपने से बातें करता हूँ, किसी और की बातें मैं सुनता हूँ। आपके सामने अभी बैठे बैठे खुद की काबिलियतों पे खुद ही सवाल उठाता हूँ। मैं बस एक मामूली इंसान हूँ, आप सब में से एक मगर आपसे थोड़ा अलग, आप सब में से एक मगर आपसे थोड़ा अलग। ये लाइन मुझे जब भी कोई पूछता है कि आप कलाकार हो, कलाकार अलग अलग तरह के होते हैं, कोई राइटर होता है, कोई शायर होता है, कोई सिंगर होता है, कोई डांसर होता है, आप अपनी पहचान किस तरह से देते हो? तो मैंने अपने लिए बस एक ही लाइन लिखी है कि बिन बोले मैं बहुत कुछ बोल देता हूँ, बिन बोले मैं बहुत कुछ बोल देता हूँ, लिख के मिटा के तोड़ के मरोड़ के, लिख के मिटा के तोड़ के मरोड़ के मैं बहुत कुछ लिख देता हूँ। कलम से ना सही अपने आवाज़ों से सही, कलम से ना सही अपने आवाज़ों से सही लोगों के दिलों पे कुछ लिख जाता हूँ। मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक शायर हूँ, अपनी आंखों से दुनिया को दुनिया दिखाता हूँ। थैंक यू। हाजरीन, हुणे बेटा सुना के गया, सो अज ਉਹਦੇ वास्ते ही कुछ लफ्ज़ ने और ये नज़म मेरे तक पहुँचाने ਲਈ सनी पक्खो जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। कर्टसी सनी पक्खोगे कि पुत्रा पढ़ लै, पुत्रा पढ़ लै, मैं सुनिया है पढ़ के पुत्रा थोड़ी बहुती मत आ जाती है, मत आ जावे ते सुक्कियां सड़ियां नाड़ां दे विच चंगी भली रत आ जाती है। पुत्रा पढ़ लै, मैं सुनिया है पढ़ के थोड़ी बहुती मत आ जाती है, मत आ जावे ते सुक्कियां सड़ियां नाड़ां विच भी चंगी भली रत आ जाती है, रत आ जावे ते डर ते वहम दे नंगे सिर ते हिम्मत वाली छत आ जाती है।
ਰਾਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਰ ਤੇ ਵਹਿਮ ਦੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਛੱਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸੱਪ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਲੱਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਪੁੱਤਰਾ ਪੜ ਲੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਮ, ਇਹ ਵੀ ਕਟਸੀ ਸਨੀ ਪੱਖੋਂ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾਪਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ कि आईना देखकर तसल्ली हुई, मुझको इस घर में भी जानता है कोई। सो उसे पैटर्न ते एक हैगा जी कि किसे नू रोग डंगदे ने, किसे नू पीड़ खांदी है, किसे दा दिल तड़फदा है, किसे दी जान जांदी है, किसे लई कौन रुलिया है, किसे क्यों खाक छाणी है, किसे नू कुछ पता नहीं है, किसे दी की कहानी है। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਨ ਖੜੀਜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਤ ਮੋਈ ਏ, ਕਿਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਰੋਈ ਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਗ ਭੋਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਜ ਮਾਣੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਬ ਟੁੱਟਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਬ ਟੁੱਟਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੀਤਣੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੀਤ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੌਣ ਦਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੌਣ ਸਕਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੌਣ ਬੇਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੌਣ ਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਰਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਰਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੂਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰ ਤੇ ਫੋੜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਟੁੱਟਵੇਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਕੋਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਟੂ ਆਲ ਮਦਰਸ ਆਊਟ ਦੇਅਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਮਾਈ ਟੌਪ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛਾਂ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਪੈਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛਾਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛਾਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ। ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਅੱਖਰ ਖਿੜ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ 'ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਂ ਲਿਖਦਾ। ਹੋ ਗਿਆ 1 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਲਾਉਂਗਾ 1 ਮਿੰਟ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਲਿਖਣੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਿੰਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਬੰਦੀ ਜੋ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਰਤਾ ਹੂੰ रुक जाता हूँ लिखते लिखते तुझ पर आजकल अक्सर, रुक जाता हूँ तुझ पर लिखते लिखते आजकल अक्सर, डरता हूँ कहीं मेरी कलम को भी तेरी आदत न लग जाए। Frankly speaking, there's something about poetry that relieves me. When there's clutter in my head, poetry comes to my rescue. So the first poem I would like to present is Winter Scars. It's about a young girl who is learning to chase her dreams. In this journey, she faces many hurdles, challenges, struggles, but she still decides to stand up for herself and chase her dreams. So here, Winter Scars for you all. In the shed of running clouds, walking in the crowd of her thoughts, she sheds no tear, as being judged the weakest is her new fear. As she flips the pages of her life, she got imperfections to embrace, dreams to chase, got
many cages in mind to break. Passing the storm, she struggles every day, drowning but also rising in miles towards sky, learning to open her wings that were once closed by lies. At the end, she's a pure soul that loves to fly and no more hates to cry. Thank you. So there's another poem. It says, Stories Unheard. It's about a concept we all have heard that people say whenever any family member dies, they turn into a star and they're watching us from sky. It's a story about the dead, the star that cannot be seen, felt or heard. So here's Stories Unheard to you. Smiling with those broken hearts, gazing at me for 1,000 hours, shedding the long-awaited cry in the throat. Those failures that made you fall on the road. Those dreams that made you awake no matter what. I hear 1,000 stories, but mine isn't heard. I see teary eyes, but mine aren't seen. I wish I could fly back to you for the tears you dropped looking at me, for the hurdles you had to face without me. Our worlds are aparted. I see you every day breaking down, but I also see you still determined to rise above all fears. Before you turn into me, a star for years, a star for years. Thank you everyone for being a patient audience, and I would like to thank Timeless Amritsar for giving me this platform. Thank you everyone. So hi everyone, this is Kanan and this is for the first time I am performing live. तो आज की जो मेरी कविता है उसका शीर्षक है साया। कुछ यादें होती हैं जो हम भुलाना नहीं चाहते और कुछ यादें होती हैं जो हम चाहकर भी नहीं भुला पाते। उसके बीच में आता है एक व्यक्ति का पास, एक व्यक्ति का साया। तो शुरू करते हैं। रात का अंधेरा था, रात का अंधेरा था, एक अंधाधुंध चाल थी, ना नींद का ठिकाना था, सूनी आंखें लाल थी। एक मकसद था, पर मकसद को जाती राहें गुमनाम थी। फिर भी चांद की मशाल लिए एक मुसाफिर की पहचान थी। वक्त बीता और रास्ते बहरे होते गए, शहर को तराशते वो अंधेरे और गहरे होते गए। अब अपनी जुनून की लौ जलाए वो मुसाफिर राह खत्म होने की राह देख रहा था। अब उस मनचले को कौन समझाए कि मंजिल पे बैठा अगला सफर उसकी लौ सेक रहा था। फिर सूर्योदय हुआ, किरणों को बादलों की खामियां सूझने लगी। हर किसी का नवजन्म हुआ था, जाने क्यों उस मुसाफिर की लौ बुझने लगी। दरअसल जिन कदमों को अंधेरा रोक ना पाया था, उन्हीं कदमों को अब साया रोक रहा था। अब आंखों का बंजर कुआं भी हवाओं से अतीत की नमी सोख रहा था। वो साया जिसमें कई घाव दफन थे, कुछ सुनहरी यादें थी और उन्हीं यादों पर चढ़े कफन थे। वो साया जिसमें अपनों से बिछड़ने का गम था और एक अनचाही मुलाकात की दास्तां थी। वो साया जिसमें अपनी ही खामियों का ढेर था और कुछ सुनी अनसुनी हिदायतें गुमनाम थी। वो साया जो जिंदगी से बेवफाही की गवाही बखूबी देता है। जो चला गया वो इतना भी अच्छा नहीं था जितना तुमने मान लिया है, या फिर वो कभी उतना बुरा था ही नहीं जितना जीते जी बना दिया था। वो साया जो आज भी दो राहों को मिलाना चाहता है। वो साया जिसमें आज भी आसमान दरिया में समाना चाहता है। वो साया जो हर मुसाफिर को रोक लेता है, जाने अनजाने चाहे अनचाहे उसका जुनून सोख लेता है। पर साया तो कभी मिटा ही नहीं था, शायद अंधेरे में समा गया था, या यूं कहो कि मुसाफिर के अतीत का साया उसके हालातों की खामोशी से मेल खा गया था। साए कभी मिटते नहीं हैं, मंजिल के आगोश में भुलाए जाते हैं। मुसाफिर यूं ही नहीं रोते, साए के आगोश में रुलाए जाते हैं। और अगर ऐसा हो तो रुक जाना और परखना कि किस हद तक तुम्हें तुम्हारा साया रुला सकता है। तुम्हारी अतीत की यादों में तुम्हें कब तक वो सुला सकता है। किसी पेड़ की छांव तले इन बंजर आंखों को नम होने देना, छाले से सने पैरों को ज़रा सोने देना, और अपने अगले सफ़र को अपने ही इंतज़ार में ज़रा रोने देना, और फिर चल देना उस मंजिल की ओर
क्योंकि साया तो जिस्म जलने तक तुम्हें बुलाना चाहेगा, तुम्हारी अतीत की यादों में तुम्हें रुलाना चाहेगा, पर मौत मंजिल की मोहताज नहीं, तुम्हारे सपने दफन करने में उसे कोई एतराज़ नहीं। तो अतीत के साथ सफ़र तय करना सीखो, क्योंकि तुम्हारा सफ़र भी तुम्हारा साया बन जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कि लाखों देखे हर बार वही चेहरा निकला, लाखों देखे हर बार वही चेहरा निकला, उसे छोड़ हर शख्स जाना पहचाना निकला। डुबोकर मार डाला मुझे उसने अपनी दोस्ती में, मैं जितना समझा था वो उससे भी गहरा निकला। कि कुछ तो है जो मुझे तुझ में रहने नहीं देता, कुछ तो है जो मुझे तुझ में रहने नहीं देता, नशे सा है सुध में रहने नहीं देता। मेरी आदत है मैं अकेला रह नहीं सकता, उसकी आदत है मुझे झुंड में रहने नहीं देता। ओके, नया है थोड़ा जा, शायद अजय बना रहे लिख रहा सीगा, माइट भी चंगा लगे या नहीं, बट जानना कि सुना रहा कि मेरा इश्क एक तरफा, खड़े होके बोलो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, चलेगा। कि मेरा इश्क एक तरफा सही, मेरा इश्क एक तरफा सही, पर तेरी आशिकी का मोहताज नहीं है। मेरा इश्क एक तरफा सही, पर तेरी आशिकी का मोहताज नहीं है। मैं मर के भी तुझ में जिंदा रहूंगा, मैं मर के भी तुझ में जिंदा रहूंगा, मेरा जीना जिंदगी का मोहताज नहीं है। और भी आते हैं तरीके, और भी आते हैं तरीके मुझे दर्द बयां करने के, और भी तरीके आते हैं मुझे दर्द बयां करने के, मेरी शायरी और भी तरीके आते हैं मुझे दर्द बयां करने के, मेरा लहजा शायरी का मोहताज नहीं है। मेरा इश्क एक तरफा सही, पर तेरी आशिकी का मोहताज नहीं है। धुंधला धुंधला सा है सब जो सामने आंखों के है, धुंधला धुंधला सा है सब जो सामने आंखों के है, वो सचमुच मुझसे दूर है या फासले आंखों के हैं। यार ना स्लो रिस्पॉन्स दो, बंद मैं ठीक कर देना। राइट, जल्दी बुलांदा ना तंग चंगर हुंदा कि बंदे ने शॉर्टलिस्ट नहीं कीते हुंदे। सॉरी फॉर दैट। हाँ, कि गजल के गजल होने का सिलसिला नहीं मिटाता, गजल के गजल होने का सिलसिला नहीं मिटाता, मैं नया लिख भी लूं तो पिछला नहीं मिटाता। फैक्ट है, बड़ी बड़ी लिखना पैंदा है, बड़ी बड़ी मिटेना पैंदा है। सो ਉਹਦੇ ਤੇ है कि गजल के गजल होने का सिलसिला नहीं मिटाता, मैं नया लिख भी लूं तो पिछला नहीं मिटाता। मन्नतें दुआएं इबादतें वो सुनता तो है, मन्नतें इबादतें दुआएं वो सुनता तो है, वो सुनता तो है पर अपना लिखा नहीं मिटाता। कुछ तो उसकी नजरों के अंदर है शायद, कुछ तो उसकी नजरों के अंदर है शायद, चुभता है हर नजर कोई समंदर कोई खंजर है शायद। कुछ तो उसकी नजरों के अंदर है शायद, चुभता है हर नजर कोई खंजर है शायद। डूब जाता हूं उसकी आंखों में एक बार देखकर, आंखें नहीं कोई समंदर है शायद। लास्ट है जी, क्योंकि आज थोड़ा जब मुझे लग रहा है कि टाइमिंग सेट नहीं हो रही, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करागा। शायद तो अच्छा लगे। बंदा ना हर किसी से उंगली चुक लेंदा है, पर अपने से चुकन लगे दो बारी सोचता है। सो ਉਹਦੇ ਤੇ है कि मैं झूठा गद्दार चोर हाँ, सच्ची नहीं है वैसे लिखे है। मैं कहा जिवें तुसीं हाजी हाजी करदे पे हो, बाहर पोस्टर ना लवा दे हो ऐही जे। ही इज द ओनली वन, लभ गया। कि मैं झूठा गद्दार चोर हाँ, मैं दिखदा हाँ कुछ और पर कुछ होर हाँ। मैं झूठा गद्दार चोर हाँ, मैं दिखदा हाँ कुछ होर पर कुछ होर हाँ। तू मैनू कदे आन मिल विचकार रस्ते दे, तू मैनू कदी आन मिल विचकार रस्ते दे, मैं मन दी भाजड़ विचला शोर हाँ। दुनिया कहंदी मैं उड़दा फिरदा हाँ,
ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਥੋਂ ਪੁੱਛ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਟੁੱਟੀ ਡੋਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਯਾਦ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਯਾਦ ਆਵਾਂਗਾ, ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੌਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਗੱਦਾਰ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹਾਂ। लास्ट है मैम दा फेवरेट वाला कि कोई खिड़की कोई दरवाज़ा नहीं रहता, कोई खिड़की कोई दरवाज़ा नहीं रहता, इश्क में हदों का अंदाज़ा नहीं रहता। एक बार जो दीदार यार हो जाए, फिर कोई मंदिर मस्जिद या ख्वाजा नहीं रहता। अगर वो तेरा है तो तेरे साथ होना चाहिए, अगर वो तेरा है तो तेरे साथ होना चाहिए। किताबों में पड़ा फूल ताज़ा नहीं रहता, वो अगर हो जाए मेरी मैयत में भी शामिल। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ, ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿ तेरे खाने या ना खाने से कोई एतराज़ नहीं, तेरे खाने या ना खाने से कोई एतराज़ नहीं, ये धर्म जात दुनिया के रिवाज हमें याद नहीं, तुझे रोका जो करवे से एक तेरी फिक्र है हमें, तुझे रोका जो करवे से एक तेरी फिक्र है हमें, और दो चांद जहां में उतरे ऐसा रिवाज नहीं। थैंक यू। तो पंजाबी च सुना रहा कि मैं बूहे बारियां बत्तियां अखियां बंद करना, मैं बूहे बारियां बत्तियां अखियां बंद करना, तू ओइयों है जिदा फिर भी दिसदा चेहरा है। मैं बूहे बारियां बत्तियां अखियां बंद कर ਲਾਂ, तू ओइयों है जिदा फिर भी दिसदा चेहरा है। तू आख्या सी रमजान महीने आवांगी, तू आख्या सी रमजान महीने आवांगी, साडे रोजे मुक गए मुख ना दिसिया तेरा है। तेरे हुसन लई की लोड़ है 10 मुहाफिज दी, मुहाफिज चौकीदार, तेरे हुसन लई की लोड़ है 10 मुहाफिज दी, तेरे मुख ते बनिया तिल ही यार बथेरा है, कि तेरी याद च पढ़ी गज़ल ते इनाम मिलिया, तेरी याद च पढ़ी गज़ल ते इनाम मिलिया, हुण समझ नहीं आती हक मेरा है या तेरा है। शुक्रिया। ओ एक दो लाइना सियासत ते कि मूहों कड्डी गल नूं ये शरेआम बदलदे ने, मूहों कड्डी गल नूं ये शरेआम बदलदे ने, दिन नूं तस्बीह रात नूं बैठे जाम बदलदे ने, मूहों कड्डी गल नूं ये शरेआम बदलदे ने, दिन नूं तस्बीह रात नूं बैठे जाम बदलदे ने। कुछ नहीं कीता ना कुछ करना ये सरकारां ने, सरकारां नहीं बदलदियां बस नाम बदलदे। कि रेता खा गए कोला खा गए, कई नेता ते चारा खा गए, जिन्नू मौका जद भी मिलिया लुट के भारत सारा खा गए। जद हो जावन बदनाम ते चोन निशान बदलदे ने, सरकारां नहीं बदलदियां बस नाम बदलदे ने। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੇਨਫੁਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਰੁੱਖ ਡਿੱਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹਿਲਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ। ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਪਹਾੜ ਤਾਂ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਸੈਲਾਬ ਆਏ ਪਹਾੜ ਤਾਂ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਹਾੜ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਹਾੜ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਸਿਰ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਦੇ। थैंक यू। तो चंगा जी, बात ये हुई कि आज मैं घर से बाहर निकली तो पड़ोसन आंटी ने कहा बेटा आप ओपन माइक पे जा रहे। मैंने हाँ आंटी, आपको कैसे पता चला? आप क्या एस्ट्रोलॉजर बन गए हो? आपने हाथ वाथ या सिर माथा पड़ना शुरू हो गए?
बोलती नहीं बेटा संडे का दिन है, तुमने ग्रीन कोट पहन लिया, मतलब तुम ओपन माइक पे जा रही हो। ते वैसे मेरी पंजाबी ना अच्छी हो गई है कि मैं झूठ बोले, जोर से बोलो। वैसे लोग कहते पे है कि मेरी पंजाबी बड़ी चंगी हो गई है, लेकिन और चंगी होनी बाकी है। एंड मैं अब छोटी छोटी दो हाँ लेके आई हूँ। तो इरशाद कि रोशन जहां को कर, कि रोशन जहां को कर, बुझते बुझते दीपक नजर का टीका काजल दे जाता है। कि रोशन जहां को कर, बुझते बुझते दीपक नजर का टीका काजल दे जाता है। कि समंदर अपने खजाने के साथ नमकीन स्वाद हमारे खाने में दे जाता है। कि बादलों का ख्याल तो करो, कि बादलों का ख्याल तो करो, कि बरसात के साथ आशिकों को बेकरार कर जाता है। करवट बदलती जिंदगी की चाल तो देखो, कि करवट बदलती जिंदगी की चाल तो देखो। कि कोयले की खान से वक्त के बाद, कि कोयले की खान के वक्त के बाद हीरो सा इंसान बना जाता है। अब ये तो अपने आप पे बीती हुई मैंने सुनाई है आप सबको। अब वैसे मेरी शक्ल कुछ ऐसी है कि लोग आके अपनी सारी राम कहानियां सुना देते हैं, अंदर की बातें आराम से बैठ के सुनाते हैं और कहते हैं जी आगे किसी को मत बताना। There's so much of stress in my life, और ऊपर से किसी और का स्ट्रेस, तो मैं कैसे इजहार करूँ, किसको बताऊँ, दीवारों को बताऊँ, किसको बताऊँ। तो I write those in my poetries, and that's why I say I write my heart on paper as the first person I meet। तो यही एक किसी की कहानी है जो मैं आपको अपनी पोएट्री के हिसाब से सुनाऊंगी, और एक्चुअली कुछ लोगों को बहुत पसंद आई थी, ताज़ा ताज़ा लिखी है, कल रात को ही लिखी है। तो शुरुआत करती हूँ। कि आज भी जब मेरा कंगन खनकता है तो उसका दिल धड़कता है। कि आज भी जब मेरा कंगन खनकता है तो उसका दिल धड़कता है। मैंने देखा है, कि मैंने देखा है, आज भी वो मुझे मुड़ मुड़ के देखता है। मेरे ख्वाबों को हकीकत में वो ही तो बदलता है। कि मेरे ख्वाबों को हकीकत में वो ही तो बदलता है। कि मुझे ख्वाब दिखाने वाला वो ही तो नहीं, कि मुझे ख्वाब दिखाने वाला वो ही तो नहीं जो मेरे दिल और जहन में अपना घर बना के बैठा है। कि मैंने देखा है, कि मैंने देखा है उसने खुद को मेरे लिए कितना बदला है। कि मैंने देखा है उसने खुद को मेरे लिए कितना बदला है। अपने ख्वाबों के आशियाना का पता बदल, कि अपने ख्वाबों के आशियाने का पता बदल, जमाने के सामने मेरे ख्वाबों को ही अपना दिखाया है। हाँ मुझे पता है कि वो आज भी मेरे से बहुत मोहब्बत करता है। हाँ मुझे पता है कि आज भी वो मेरी मुस्कुराहट पर मरता है। मेरे अल्हड़पन को और मेरे मासूमियत को उसने ही तो दुनिया से बचा के रखा है। कि अल्फाजों के शहर से, कि अल्फाजों के शहर से वो मेरे लिए मीठे मीठे लफ्ज ढूंढ के लाता है। कि अल्फाजों के शहर से वो मेरे लिए मीठे मीठे लफ्ज ढूंढ के लाता है। कि मेरी कविताओं में वो ही तो नहीं, कि मेरी कविताओं में वो ही तो नहीं, एक्सक्यूज मी, कि मेरी कविताओं में वो ही तो नहीं जिसने मेरी भावनाओं को समझा है। हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है आज भी मुझसे वो बहुत मोहब्बत करता है। हाँ मुझे पता है कि आज भी वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। सब्र का फल मीठा है, सब्र का फल मीठा कहे, मुझसे लंबी दूरी रखता है। कि सब्र का फल मीठा कहे, वो मुझसे लंबी दूरी रखता है। हाँ
आज भी वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। शुक्रिया। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਝੁਕਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਫਗਾਨ ਖਾਨ ਆ ਪਿਆ ਕੇ, ਝੁਕਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਫਗਾਨ ਖਾਨ ਆ ਪਿਆ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਥੱਕੀ ਹਾਰੀ ਸੌਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਰੀ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਲੱਗ ਗਈ ਨਜ਼ਰ ਕਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਝੋਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੈੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ, ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਰੱਜਿਆ, ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਪਾਲਿਆ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੀ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਭੱਜਿਆ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਆਖਦੀ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਆਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਕਾਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵੇਚ ਵੇਚ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੈੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਸਾਡੇ, ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਕੇ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀਏ ਜਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਰਲ ਮਿਲ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਕੇ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਇਹ ਜਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੌਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਲਾਤੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਲਾਤੀ, ਚਿੱਟੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਮੋਰਾਂ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਆਵਾਮ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੈੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਬਚੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਬਚੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੁੱਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੇਕ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੇਕ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੇਕ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਸੜਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰਹਿਮ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲਓ। ਰੋਂਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਰੋਂਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਝੋਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੈੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੈੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਿ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂ, ਬੇਵਫਾਈ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ। ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂ, ਬੇਵਫਾਈ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ। ਤੇਰੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ, ਹੁਣ ਰੱਖਦਾ ਹੋ ਖਿਆਲ ਤੇਰਾ। ਨਜ਼ਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਰੰਗ ਜਾਣਾ, ਜਾਪੇ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮੁੱਕਿਆ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ। ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂ, ਬੇਵਫਾਈ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ। ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ, ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਤੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੌਹਾਂ ਨਾ ਵਿਛੜਨ ਦੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਰੁੱਖਾ ਵਿਹਾਰ ਤੇਰਾ। ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂ, ਬੇਵਫਾਈ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੁੱਸਣਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੁੱਸਣਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਆ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਸਭ ਝੂਠਾ ਸੀ ਇਕਰਾਰ ਤੇਰਾ। ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂ, ਬੇਵਫਾਈ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ। ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂ, ਬੇਵਫਾਈ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ। ਜੰਨਤ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜੰਨਤ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ।
ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਗਈ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਜੰਨਤ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਗਈ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ, ਚੰਦਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇਰਾ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂ ਬੇਵਫਾਈ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂ ਬੇਵਫਾਈ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਟਰਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਤੀਜੇ ਐਤਵਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ 2013 ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਜਦ ਵੀ ਆਵਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੱਜਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਬਸ ਵੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ, ਬਸ ਵੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਰਨੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕੱਟ ਸੱਜਣਾ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕੱਟ ਸੱਜਣਾ, ਲੜਨ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਵੱਟੀ ਅੱਖ ਦੀ ਘੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਕਵਿਤਾ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਜਦ ਵੀ ਆਵਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੱਜਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਉਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਜੋ, ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਬਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਣਾ ਸਿੱਖ, ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਾਤੋਂ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਬਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਝਰਨਾ ਵੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਕੈਫੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਝਰਨਾ ਵੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਨਾ ਰੁਕਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਰੁਕਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਢਲਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਝਰਨਾ ਵੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਨਾ ਰੁਕਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਕੋਇਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਕੋਇਲ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਕਹੇ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਏ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਘੋਲਦਾ ਰਹਿ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਕੋਇਲ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿ। ਇਹ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਇਹ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਸੱਜਣ ਦਾ ਦੱਸਦੀ ਏ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਿਨ, ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਸਦੀ ਏ, ਉਹ ਚੰਦਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਏ, ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਏ, ਇਹ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਸੱਜਣ ਦਾ ਦੱਸਦੀ ਏ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚਹਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵਾ ਕਾਲੀ ਟਿੱਬਾ, ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਗਿਆ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੰਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੰਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੰਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੱਸਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੱਸਦੀ ਏ, ਕਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਝੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ,
तेरे नाल तुरां तेरा हੱਥ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ इसे सामान्य सफर जान सन्नी बाजी सुन लो आपको बड़े ध्यान से सुना हमने कि इसे सामान्य सफर जान ये जुगनू रख ले इसे सामान्य सफर जान ये जुगनू रख ले राह में तीर ये होगी मेरे आंसू रख ले इसे सामान्य सफर जान ये जुगनू रख ले राह में तीरगी होगी मेरे आंसू रख ले और तू जो चाहे तो तेरा झूठ भी बिक सकता है तू जो चाहे तो तेरा झूठ भी बिक सकता है शर्त इतनी सी है कि सोने की तराजू रख ले मेरी ये ख्वाहिश के आंगन में न दीवार उठे आखिरी लाइन है कि मेरी ये ख्वाहिश के आंगन में न दीवार उठे मेरे हिस्से की जमीन मेरे भाई तू रख ले आज मेरा आने का विचार नहीं था तो लेकिन अचानक से विचार बना मैं कुछ लिख रहा था वो आधा अधूरा सा लिखा गया और टॉपिक भी मैंने ऐसा चुना कि उसके बारे में पूरा पूरा कोई लिख भी नहीं सकता हाँ जी फिर मैं अगली बार बताऊं तो मैंने शादी के बारे में लिखा है थोड़ा बहुत ठीक है कि शादी क्यों करनी चाहिए कैसे करनी चाहिए तो मैं इसे कविता का रूप दे नहीं पाया तो जैसे टूटा फूटा लिखा था मैं वैसे ही आपको गद्य में पढ़ रहा हूँ तो अब प्लीज सुनिए कि औरत इसलिए शादी करती है कि तारीफ करने के लिए एक मर्द मिल जाए और मर्द इसलिए शादी करता है कि उसे बिना तारीफ किए कोई औरत मिल जाए वैसे घर को जन्नत बनाने के लिए शादी जरूरी है वैसे घर को जन्नत बनाने के लिए शादी जरूरी है क्योंकि मरने के बाद ही जन्नत नसीब हो सकती है मेरे ख्याल से हर कमारा आदमी अहमक होता है अहमक समझते हो कि मेरे ख्याल से हर कमारा आदमी अहमक होता है मगर उसे यह बात पता चलने के लिए उसका शादी होना जरूरी होता है देखा जाए तो शादी का इससे ज्यादा फायदा और क्या होगा कि केवल शादी करने की सूरत में ही आदमी खुदा बन सकता है देखा जाए तो शादी का इससे ज्यादा फायदा क्या होगा कि केवल इसी सूरत में आदमी खुदा हो सकता है क्योंकि खुदा भी सुनता सब कुछ है बोलता कुछ नहीं पहले मेरा भी यही ख्याल था कि हर औरत शादी करे लेकिन मर्द शादी ना करे लेकिन अब मैं कहता हूं कि हर मर्द को अपने से बड़ी उम्र की औरत से शादी करनी चाहिए वैसे शादी से बचने का यह भी एक तरीका है क्योंकि जिस भी औरत से आप कहोगे कि मुझे अपने से बड़ी उम्र की औरत से शादी करनी है तो वो कहेगी कि इसका मतलब आप मेरे से शादी नहीं करना चाहते बड़ी उम्र की औरत से शादी करके आप दुनिया के उन खुशनसीब शोहरों में शुमार हो जाएंगे कि जिनके यहाँ सांस नहीं होती क्योंकि जब तक सांस है जब तक सांस और उसके बाद आपको अपनी बीवी का हुक्म मानने में भी कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि लिखा हुआ है कि बड़ों का हुक्म मानना चाहिए दुनिया की वो औरत जिसे आप कभी खुश नहीं कर सकते वो पत्नी होती है दुनिया की वो औरत जिसे आप कभी खुश नहीं कर सकते वो पत्नी होती है और दुनिया की वो औरत जिसे आप तुरंत खुश कर सकते हो वो भी पत्नी होती है लेकिन किसी और की
बीवी की खूबियां तलाश करना कुछ ऐसा ही है जैसे कि अपनी कमियां तलाश करना। बंदा इसलिए शादी करता है कि वो सुकून से रह सके, बंदा इसलिए शादी करता है कि वो सुकून से रह सके, और जो शादी नहीं करता वो भी इसीलिए नहीं कर सकता कि वो भी सुकून से रह सके। शादी एक ऐसी व्यवस्था है, शादी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो लोग कुछ ऐसे ढंग से रहते हैं कि एक दूसरे को रहने नहीं देते। वैसे शायरों को शादी जरूर करनी चाहिए, वैसे शायरों को शादी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर बीवी अच्छी हुई तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, और अगर बीवी अच्छी ना हुई तो शायरी तो अच्छी हो ही जाएगी। शायरी के बारे में एक 2-3 मिनट और लूँगा आपके कि शायद इसके बारे में, शायद शादी के बारे में, प्यार मोहब्बत के बारे में मैंने पढ़ा है। देयर आर 7 स्टेजेस ऑफ लव, अट्रैक्शन, अफेक्शन, लव, ऑब्सेशन, 7 स्टेजेस। मेरे ख्याल से एक 7वें स्टेज भी है, 8वें स्टेज भी है कि डिनाइल, जिसमें आदमी को किसी से प्यार हो जाता है और वो यही कहता रहता है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, मैं तुझसे प्यार नहीं करता, मैं तुझसे प्यार नहीं करता, खुद से ये कहता रहता हूँ, मैं तुझसे प्यार नहीं करता, खुद से ये कहता रहता हूँ, पर तेरी सांसों में चुपके सांसें लेता रहता हूँ। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, मैं तुझसे प्यार नहीं करता, पर शहर में जिस दिन तू न होगी शहर पराया लगता है, हर फूल लगे बेगाना सा हर शजर पराया लगता है। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, मैं तुझसे प्यार नहीं करता, वो अलमारी कपड़ों वाली लावारिस हो जाती है, ये पहनूं या वो पहनूं ये मुश्किल भी खो जाती है। मुझे ये भी याद नहीं रहता कब दिन डूबा कब शाम हुई, अभी कल की बात है घंटों तक मेरी दीवारों से बात हुई। मुझे ये भी याद नहीं रहता कब दिन डूबा कब शाम हुई, अभी कल की बात है घंटों तक मेरी दीवारों से बात हुई। जो होश अभी कुछ बाकी है लगता है खोने वाला हूँ, अफवाह उड़ी है यारों में मैं पागल होने वाला हूँ। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, मैं तुझसे प्यार नहीं करता, पर कोई ऐसी शाम नहीं जब याद तुझे तेरी बातों को मैं 100 बार नहीं करता। मैं तुझसे प्यार नहीं करता। आसमानों से, ये संदीपा जी ने अच्छा दादी दीदी, मैंने सोचा आपने कहिए लगे रहो। आसमानों से जो अता है मुझे, आसमानों से जो अता है मुझे, वो दुआ तुम हो ये पता है मुझे। इश्क हो तुम जानता हूं मैं, मेरी हो तुम ये मानता हूं मैं, मेरा ईमानो दीन है तुम पर, मुझे पूरा यकीन है तुम पर। फिर भी कम वक्त ये दिल धड़कता है, जाने ये सोच कर तड़पता है कि तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। यूं तो दिन से भी मेरी अनबन है, यूं तो दिन से भी मेरी अनबन है, रात लेकिन पुरानी दुश्मन है। शाम से बेकली सी रहती है, दिल में खलबली सी रहती है। नींद कितनी भी गहरी में सो जाऊं, बेखबर कितना भी चाहे हो जाऊं, दर्द सीने में जगा रहता है, एक खटका सा लगा रहता है कि तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। तुम मोहब्बत का एक जजीरा हो, जैसे मंदिर में कोई मीरा हो, जैसे दरगाह में हो कुन पाया, तुमने ऐसे ही मुझको है गाया। प्यार करती हो जितना है बस में, दौड़ता हूं तुम्हारी नस नस में, जानता हूं जो अपना नाता है, फिर भी ये डर सताए जाता है कि तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। तुम पे शक है, तुम पे शक है, अरे नहीं जाना, हो सकता है कि कहीं जाना। तुम पे शक है, अरे नहीं जाना, हो सकता है क्या कहीं जाना। सबसे आला किया निराला किया इश्क तुमने किताबों वाला किया, सबसे आला किया निराला किया इश्क तुमने किताबों वाला किया। पर किताबें ही हमें बताती हैं
कश्तियाँ दिल की डूब जाती हैं, इससे पहले भी ख्वाब टूटे हैं, इससे पहले भी साथ छूटे हैं। तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। शुक्रिया।